Welcome back to my YouTube channel. Hi my friends, good evening. How are you? I am very fine. This is Mr. Sukant, spoken English class. It is Rajasthan, Swami Vivekananda Public School at Gauthara. Today's topic is use of have and has. My dear friends and my dear students, I want to request to you that whenever I start the spoken English class, before I used to say that please practice all the pronouns and practice all the verbs, because without pronouns and without verbs we cannot write or we cannot make the sentence. So I request that please and kindly practice all the verbs, all the pronouns. What is mean by I, what is mean by you, what is mean by they, what is mean by he, what is mean by she, what is mean by them. Pronouns, the kinds of the pronouns and the forms of the verbs you have to practice. Without practice you cannot make. So I am requesting that please practice, practice, practice. Do by heart. Without doing by heart you cannot make or you cannot speak English. So please you have to improve your words power, the vocabulary powers. If you don't know any words name, any vocabularies, then you cannot make the sentence or you can't speak with anyone. So please, before starting the speaking English, before learning the speaking English, you have to practice the basic knowledge of the words. That simply, what is this? This is a pen. What is this? This is a chair. What is this? This is a house. Such kind of the different small words meanings we have to practice. If you don't know the meanings, then how can you say that? What is this? I don't know. What is that? I don't know. If you say don't know means that will be problem to speak in English. Okay. So please practice the pronouns and the whole meanings. Vocabulary is the very important. Okay. Vocabulary if you don't know means you can't make. Okay. So let's start to our spoken English class. Today's topic is have and has. The have has the present, just like present perfect tense. Okay. There has, for a have has present perfect tense and another has without any verb. In the place of the verb we will write that object, directly object. We will replace the object in the place of verb. Then the sentence will be the different and the meaning also will be the different. Okay. Let's start the spoken English class. So come on, see, use of have and has. Have and has. Use of have and has. So my dear friends and my dear students, I want to request that all pronouns, did you practice? What is mean by I? What is mean by you? What is mean by they? What is mean by he? What is mean by she? I means क्या है? We means क्या है? You means क्या है? ये सब सीखना चाहिए. अगर नहीं सीखोगे तो नहीं बना पाओगे. So सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है. बिना सीख के, बिना प्रैक्टिस करके हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे. Okay? So I want to request, first of all you have to know the meaning of the pronouns, then after secondly the verbs. Okay? Verbs has three forms. Go, went, gone, eat, ate, eaten, write, wrote, written, play, played, played. Go means jana, went means gaya, gone means the third form. Okay? Such kind of verbs you have to practice more, not 10, not 20 or not 50. As much as you can. जितना कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना याद कर सकते हो, उतना प्रैक्टिस करना जरूरी है. ओके. ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो. वर्ड्स जितना हम सीखेंगे उतना ही हम वर्ड यानी सेंटेंस बना पाएंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. This is just like present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense formula. You see that present perfect tense formula. Subject plus have has plus verb 3 plus object. Subject means pronouns. Subjective pronouns. I, we, you, they, he, she, it, that, dog, cat, boy, girl, like that. Okay. Have has. The have and has, this is the helping verb. Have is for the plural pronouns,
हैव इज फॉर द सिंगुलर प्रोनाउंस, हैव इज फॉर प्लूरल प्रोनाउंस, बहुवचन सर्वनाम के लिए, बहुवचन कर्ता के लिए, ये एक वचन कर्ता के लिए, फॉर द प्लूरल प्रोनाउंस, प्लूरल सब्जेक्ट, दिस इज द सिंगुलर फॉर सब्जेक्ट. ओके. वर्ब 3 means the third form of the verb. Third form of the verb means verb की third form. go की third form क्या है? gone. eat की third form क्या है? eaten. write की third form written. what is the third form of the write? written. what is the third form of the play? played. okay, means the third form of the verb we have to write here. this is the third form of the eat. eat का थर्ड फॉर्म क्या है? eaten. राइट का थर्ड फॉर्म क्या है? written. ऐसा थर्ड फॉर्म तो हमें यहाँ लिखना है. जैसे कि देखो I have eaten, जितना सर्वनाम है यानी सर्वनाम को हमें सब्जेक्ट जैसा, कर्ता जैसा यहाँ पे लिखेंगे. तो अगर I एक वचन या बहुवचन, वो पहले हमें देखना है. इसी टेंस में आई से आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? बहुवचन सर्वनाम है. ओके. दीज आर द प्लूरल प्रोनाउंस, प्लूरल सब्जेक्ट. सो फॉर द प्लूरल प्रोनाउंस वी विल राइट द हेल्पिंग वर्ब हैव. व्हाट विल वी राइट? हैव. अगर सर्वनाम बहुवचन है तो हम हैव लिखेंगे, अगर सर्वनाम एक वचन है तो हैज लिखेंगे. एक वचन सर्वनाम कौन है? ही, सी, ईट, डॉग, कैट, बॉय, ये सब एक वचन सर्वनाम, एक वचन कर्ता. ओके. इनके लिए हमें हैज लिखना है. ओके. पहले अभी यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस को मैं ट्रांसलेशन करूंगा. आई हैव रिटन यानी मैं लिख चुका हूं, यानी मैंने लिखा है. ओके. आई हैव ईटन यानी मैं खा चुका हूं, यानी मैंने खाया. किसने खाया? मैंने खाया. मैं खा चुका हूं. और इनका तीनों सेंटेंस बनाना है. मैं खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका हूं? मैं नहीं खा चुका हूं. आप खा चुके हैं, क्या आप खा चुके हैं? आप नहीं खा चुके हैं. मैं देख चुका हूं, क्या मैं देख चुका हूं? मैं नहीं देख चुका हूं. उनका टू मीनिंग्स सेम है. मैंने देखा है, क्या मैंने देखा है? मैंने नहीं देखा है. और मैं देख चुका हूं, क्या मैं देख चुका? मैं नहीं देख चुका हूं. तो उनका मीनिंग्स हिंदी में दो है. इन इंग्लिश इज इट सिंगल ओनली, बट इन हिंदी मीनिंग्स देयर हैज टू. ओके. सो आई हैव ईटन मीन्स मैं खा चुका हूं. इनका 3 सेंटेंस बनाना है, जैसे कि इंपैरेटिव, इंटरोगेटिव and negative. Imperative means assertive. Imperative, interrogative and negative. Imperative means सकारात्मक, प्रश्नात्मक और नकारात्मक. हमें तीनों सेंटेंस बनाना है. सकारात्मक सेंटेंस और नकारात्मक सेंटेंस, सॉरी ये प्रश्नात्मक और नकारात्मक सेंटेंस. अगर तीनों सेंटेंस हम नहीं बनाएंगे तो बातें करते वक्त, दूसरों के साथ हम टॉकिंग करते वक्त तीनों सेंटेंस तो जरूरी है. इसीलिए प्रैक्टिस करना भी जरूरी है. मैं खा चुका हूँ, वो खा चुका है, हम खा चुके हैं, तो इतने ही बोलते क्या? हम दूसरों को पूछते हैं. मीन्स वी आर आस्किंग समवन दैट हैव यू ईटन, हैव यू रिटन, हैव यू सीन. मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें हैव के साथ बनाना है. किसी के साथ? हैव के साथ. हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ? हैव यू ईटन, क्या आप क्या खा चुके हैं? हैव यू रिटन, क्या आपने लिख चुका है? ओके. तो आई हैव नॉट ईटन मीन्स मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं लिख चुका हूँ, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं कहा है, उसने देखा है. मीन्स आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट प्लेड, आई हैव नॉट टेकन. आई हैव नॉट टेकन यानी मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं ले चुका हूँ. ओके. मैंने पहले से कहा 2 मीनिंग्स है हिंदी में, इसीलिए 2 मीनिंग्स को जो कंफर्टेबल है वो कंफर्टेबल वर्ड मीनिंग को लिखना चाहिए. ओके. आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट प्लेड, आई हैव नॉट टेकन. मैंने नहीं खेल चुका हूँ, मैंने नहीं देख चुका, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं सुना है, ऐसा. ओके.
सो ये तो मैंने प्लूरल प्रोनाउंस के लिए सेंटेंस बना दिया। तो अभी प्लूरल प्रोनाउंस को ऐसा आई से शुरू करके वी यू दे आई वी यू दे और पीपुल चिल्ड्रन इन सब प्रोनाउंस के साथ यहाँ पे खुद बनाना है। कौन बनाएगा? आप बनाओगे। ओके, जैसे आई के साथ बनाया वैसे वी के साथ ऐसा ही बनाना है। ओनली ये प्रोनाउंस को हटाओ। कहाँ पे प्रोनाउंस है? ये आई। इस आई की जगह पे अगर हम वी लिखेंगे, वी यानी क्या है? हम खा चुके हैं। क्या हम खा चुके हैं? हम नहीं खा चुके हैं। वी हैव ईटन, हैव वी ईटन, वी हैव नॉट ईटन। इसी जगह पे हम वी लिखेंगे। इसी जगह पे हम वी लिखेंगे, मतलब आई की जगह पे हम वी लिखेंगे और वी लिखने के बाद यू के साथ लिखेंगे, यू लिखने के बाद दे के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हम ओनली प्रोनाउंस सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। तो सेम टू सेम जैसा ये बना हुआ वैसा दे के साथ बनाओगे। ओके, वी हैव ईटन, हैव वी ईटन, वी हैव नॉट ईटन। हम खा चुके हैं। क्या हम खा चुके हैं? हम नहीं खा चुके हैं। यू के साथ भी ऐसे ही बनाओ। यू हैव ईटन, हैव यू ईटन, यू हैव नॉट ईटन। आप खा चुके हैं। क्या आप खा चुके हैं? आप नहीं खा चुके हैं। ऐसा ओरल भी बहुत स्पीडली प्रैक्टिस करना है। इफ यू डोंट प्रैक्टिस स्पीडली मीन्स यू कैनॉट स्पीक इंग्लिश वेल। ओके, so kindly practice it very speedily, slowly. First of all you have to say, then after 2 times, 3 times, 4 times, 5 times and more again and again you have to practice. Then after you can do it very fast. Okay, then let's go to the singular sentence. Singular sentence कैसे बनाना है? Singular sentence means सर्वनाम और सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये ही, सी, ईट, डॉग, कैट मीन्स ये एक वचन सर्वनाम, एक वचन कर्ता। इसीलिए एक वचन के लिए हैज का इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन यूज हैज फॉर द सिंगुलर प्रोनाउंस। ओके, ही हैज रिटन, ही हैज ईटन, ही हैज टेकन। वो खा चुका है, वो लिख चुका है, वो आ चुका है, वो देख चुका है। क्या वो आ चुका है? क्या वो लिख चुका है? क्या वो खा चुका है? वो नहीं आ चुका है, वो नहीं लिख चुका है, वो नहीं खा चुका है। और दूसरा सेंटेंस कैसा? उसने आया है, उसने देखा है, उसने कहा है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, ही हैज रिटन, हैज ही रिटन, ही हैज नॉट रिटन। वो लिख चुका है। क्या वो लिख चुका है? वो नहीं लिख चुका है। यहाँ पे सी के साथ ऐसे है, ईट के साथ ऐसे है, डॉग के साथ ऐसे, कैट के साथ ऐसे, बॉय के साथ ऐसे। हर सेंटेंस हम यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। तो किसी को चेंज करेंगे? सर्वनाम यानी सब्जेक्ट, कर्ता को यहाँ पे चेंज करके हम दूसरा सब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, तो ऐसा आई के साथ और ही के साथ ओरल स्पीडली प्रैक्टिस करना है। अगर ओरल स्पीड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट अनदर, यहाँ पे देखो, प्लीज सी दिस वन, यूज ऑफ हैव एंड हैज। फॉर्मूला इज डिफरेंट। फॉर्मूला इज, ये फॉर्मूला बहुत फर्क है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ भी चीज। आई यानी क्या है? मैं। आई सिंगुलर या प्लूरल है? दिस इज प्लूरल, नॉट सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। इन दिस टेंस, इस टेंस में आई प्लूरल है, इसीलिए हम हैव का यूज करेंगे। तो आई हैव ए पेन। देखो, आई हैव के बाद हमने यहाँ पे आई हैव इटन, आई हैव रिटन हम लिख रहे थे, यानी वर्ब्स लिख रहे थे। वर्ब्स यानी क्रिया लिख रहे थे। तो अभी हम क्रिया नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक मोबाइल है। ऐसे तो आई, वी, यू, तो ऐसा ही आपके पास एक घर है, आपके पास एक गाड़ी है। हाँ, ऐसा हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास एक मोबाइल है, हम ऐसे बोल सकते हैं। मीन्स यू भी ऐसा ही है आपके पास। आई, वी, यू, दे यानी वे, उनके पास एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उनके पास एक स्कूल है, उनके पास एक कुछ चीज है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? बहुवचन सर्वनाम। बहुवचन सर्वनाम यानी प्लूरल प्रोनाउंस। ओके, फॉर द प्लूरल प्रोनाउंस वी हैव टू राइट दैट हैव। फॉर सिंगुलर प्रोनाउंस
हैज, फॉर सिंगुलर प्रोनाउन हैज, ही हैज ए पेन, ही मीन्स वाह। इनका हिंदी लिखते वक्त क्या है ना, ऑब्जेक्टिव जैसे बोलना है, उसके पास एक मोबाइल है, सर उसके पास एक मोबाइल है, सर उसके पास एक गाड़ी है, सर उसके पास एक किताब है, सर उसके पास एक कंप्यूटर है, सर उसके पास एक लैपटॉप है। ओके, ही हैज ए लैपटॉप, ही हैज ए बुक, ही हैज ए whatever maybe we can say that. Okay, then now we will make the interrogative sentence and negative sentence. My dear friends, interrogative sentence and negative sentence is very hard, very tough, so kindly very carefully you have to listen. इनका नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, बनाना मुश्किल नहीं है, याद करना मुश्किल है और याद रखना मुश्किल है और बोलना भी मुश्किल है। तो अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखना है, देखो मैं एक बनाऊंगा तो वैसा ही सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो, आई के साथ, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक मार्कर है, तो उसको भी इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है ना। क्या मेरे पास एक कार है, क्या आपके पास एक मोबाइल है, सर आपके पास कार है, आपके पास मोबाइल है, तो उसका आंसर कुछ भी तो नेगेटिव वाला आएगा, नहीं तो पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आता है तो आंसर इज द नेगेटिव मीन्स नो आई डोंट हैव। डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डस की यूज किया जाता है। ओके, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं एक बनाऊंगा, आई विल मेक वन सेंटेंस, आई हैव ए मोबाइल। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसको लाएंगे, डू, यानी डू ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए डू की इस्तेमाल किया जाता है। डू आई हैव ए मोबाइल, आई डू नॉट हैव ए मोबाइल, आई हैव ए मोबाइल, डू आई हैव ए मोबाइल, आई डू नॉट हैव ए मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है, क्या मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है। आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास एक घर है, क्या आपके पास एक कुछ भी चीज़ है, हम जब पूछते हैं तो उस वक्त अगर वहाँ से आंसर नेगेटिव आंसर आता है तो नहीं भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, वी डू नॉट हैव ए हाउस, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, दे डू नॉट हैव, ऐसा। ओके, डू यू हैव, डू दे हैव, डू वी हैव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो वी डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव ऐसे लिखेंगे। ओके, तो अभी सिंगुलर सेंटेंस के लिए कैसे लिखेंगे, ही हैज ए पेन, उनके पास एक पेन है, तो क्वेश्चन क्या होगा, डस ही, क्योंकि ये डस हुआ है सिंगुलर, इसीलिए और सिंगुलर दो बार, डस ही, हैज नहीं होगा, हैव ही होगा, हैज नहीं होगा, क्योंकि ये हैज सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर सिंगुलर दोनों एक ही सेंटेंस में नहीं रहते हैं। डस ही हैव ए पेन, ही डज नॉट हैव ए पेन, उसके पास एक कलम है, क्या उसके पास एक कलम है, उसके पास कलम नहीं है, उसके पास एक घर है, क्या उसके पास एक घर है, उसके पास एक घर नहीं है। ओके, you might have understand that when we use that have and has, that only we will remember that have is for plural and has is for singular,
And when we make that interrogative and negative sentence, just remember it that do and does we will write here. Okay. Thank you very much that you have understood already that kindly whatever I said you have to practice all the pronouns and verbs. Okay. Thank you my dear viewers. See you once again more. Bye.